Our role in the preservation heritage, if the central and the state government, UNESCO and the NGOs, non-government organizations are the performing their duties to preserve our valuable heritage, then as an individual and should play the effective role in the directions. Teachers in the schools and the colleges should impart the knowledge of the India's glorious heritage. Students as well as the common public giant and the knowledge of the unfamiliar places, monuments, ancient and the remains sites, etc. They should help in the preservation and the protection. Everyone should take care of these monuments by preparing the list of the heritage sites. Valuable things should not be the destroyed, broken or the stolen. Schools, colleges and NGOs should conduct the programs like the visit to the historical places and the sites, speech, exhibitions, discussions, seminars, etc. to create the awareness towards the preservation of the heritage. If the specimen of architecture, sculptures and the historical monuments and the destroyed places of the difficult to the restore them to their original form, so the moral duty to should not be the destroyed to the shifted to other place. Our country has rich and the unique heritage. There are the many ancient ponds, lakes, stepwells and wells, streams, springs, etc. in the different places in our country. We should take the special care of the Malad Lake of the Dholka, Rani Ki Vav, Patan Well of the Champaner, Bhamaryu Well of the Mahmudabad, Navgan Well of the Junagadh, and during the monsoon we should constantly keep an eye their preservation. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हमारा क्या रोल होता है, तो जिसमें हमें बताया है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, वे स्टेट गवर्नमेंट जो है एंड यूनेस्को, एनजीओस वगैरह जो है, जो कि कई तरह से जो है हमारी हेरिटेज को जो है बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये जो है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको हमारी हेरिटेज को जो है प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे टीचर्स वगैरह जो स्कूल कॉलेज में वे जो स्टूडेंट्स को इसके बारे में, हेरिटेज के बारे में बताते हैं, उनकी जो है यहाँ पे लिस्ट तैयार करवाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है अपनी हेरिटेज को जान सके, पहचान सके, उसको प्रिजर्व होने से रोक सके एंड उसे जो है किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो, उसे कोई चुरा कर ना ले जाए, इस तरह से उसे जो है यहाँ पर रख सके। इसके लिए जो है कई तरह से एग्जीबिशंस एंड यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाता है, लोगों में जागृति यानी कि अवेयरनेस वगैरह लाई जाती है कि हम हमारी हेरिटेज को किस तरह से यहाँ पे प्रिजर्व करें। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि हमारी कोई हेरिटेज जो है, जो कि अगर एक बार जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे जो है वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसे रिस्टोर नहीं कर सकते और ना ही उसे किसी और प्लेस पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कहीं और उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उसे प्रिजर्व करना जो है काफ़ी यहाँ पे नेसेसरी होता है। तो इस तरह से वर्षा ऋतु में जो यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह जो होते हैं, वाव वगैरह, इन सब पर खास ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत होती है कि उनका जो है यहाँ पे किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। जैसे कि गुजरात में जो है धोलका में भी रानी की वाव, पाटन में चंपानेर जो है और भमरियो लेक वगैरह जो है, इन सब का जो है यहाँ पे प्रिजर्व करना बारिश के मौसम में उसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज cleanliness and the preservation of picnic spot. Central and the state government are taking proper steps for the cleanliness and the preservation of our picnic spot. Consequently, the special arrangement has been made for it. Religious historical places have always been a greater attractions among the local as well as the foreign tourists. Henceforth, the government is attentive थ्रू द टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे लोग जो पिकनिक वगैरह पर स्पॉट पे जिन प्लेसेस पे जाते हैं उसके क्लीनलीनेस के लिए एंड उसे प्रिजर्वेशन के लिए जो कई तरह से रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे कि डू नॉट यूज़ प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, डू नॉट द लिटर एट द पिकनिक स्पॉट्स एंड द डस्टबिन, डू नॉट स्पॉइल द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड इधर बाय द ड्राइंग एंड द राइटिंग पिक्चर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट प्लेसेस जो है उन पर किसी तरह से कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, या कोई पिक्चर ड्रॉ करके जो है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एंड डू नॉट स्पीट आफ्टर ईटिंग द टोबैको और पान बैटल। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें जो भी है डिस्पोज वगैरह जो वो यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली जो है डस्टबिन में कुछ भी डस्ट हो तो उसे फेंकना चाहिए। एंड यहाँ पे टोबैको वगैरह जो है वह खाने के बाद इधर उधर थूकना नहीं चाहिए।
डू नॉट पॉल्यूट द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है उसके आसपास में जो है हमें सराउंडिंग, उसके आसपास में जो है हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। Extensive care should be taken during the monsoon of the historical monuments, which is the constitution staples, flags, ponds, streams, etc. Be cautious while cleaning the monuments with the archaeological chemical method. Sanitize the domestic and the foreign visitors to avoid the damage of our historical heritage. If the natural disasters have caused damage to the historical places, make the efforts to bring its origin to the original form. यहाँ पे हमें बताया है कि मानसून के टाइम पे जो स्टेप वेल्स, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा जो है इन सब का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। एंड उसके बाद में बताया कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो है, जो ना कोई भी जो हेरिटेज है उसे जो है आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड से जो है क्लीन करना चाहिए ऐसे मोनूमेंट प्लेसेस को। एंड उसके बाद में हमें बताया कि किसी भी तरह से हमारे हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है उसे डैमेज ना हो, इसके लिए जो काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि विजिटर्स वगैरह, फॉरेन विजिटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं तो उनको डैमेज ना हो। एंड इसी तरह से यदि अगर कुछ डिज़ास्टर के टाइम पे वगैरह जो है कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह जो है यहाँ पे डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो उन्हें जो है फिर से उनके ओरिजिनल फॉर्म में किस तरह से लाना, उसके लिए यहाँ पे जो है ट्राई करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है इन सबको हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द ब्यूटी एंड द क्लीनलीनेस ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस एज दे ब्रिंग फेम एंड द प्रॉस्पेरिटी टू द नेशंस। वी शुड मेक यूज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी ऑफ आवर एंशिएंट हेरिटेज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी हेरिटेज की जो हमारे हमारे हेरिटेज प्लेस जो है उसे जो है हम किस तरह से क्लीनलीनेस रखें, उसके फैम को जो है हम किस तरह से बनाए रखें जिसकी वजह से हमारे नेशन में जो है प्रॉस्पेरिटी रहे। तो इस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेथड जो है उन्हें यूज़ करके जो है हमारी हेरिटेज को जो है यहाँ पे क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। तो आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया का जो यह मेन फीचर्स माना जाता है कि यूनिटी में डाइवर्सिटी है। Being one of the most ancient civilization of the world, India has the varied and the rich cultural heritage. Diversity of India, it is a unique identity. India has a fine amalgamation of the different caste, community, religion, traditions, cultures, and the languages. In spite of the having variety, yet India stands the united and the undivided. India has proved to the feelings of the Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. This feeling exists in the India as the Vedic periods. Let us good thoughts and the vibrations from all four directions of the message of Rig Vedas, and which shows the cases of the grandeur and the glory of the Indian cultural in India has spread religious tolerance and the secularism across the world. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में, वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो इंडिया की यहाँ पे सिविलाइजेशन है वह उसकी हेरिटेज जो है काफ़ी यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, मोस्ट एंशिएंट मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें कि अलग अलग इन लोगों की कम्युनिटी होती है, डिफरेंट कास्ट होते हैं, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड लैंग्वेज वगैरह के जो है लोग सभी रहते हैं, लेकिन सभी लोग जो है फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। और इंडिया ने जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है उसे एक्सेप्ट किया है, यानी कि द होल वर्ल्ड इज़ फैमिली, यानी कि पूरी दुनिया जो है वह एक परिवार है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है यह सब हमें वैदिक पीरियड में जो है जानने को मिलता है, एंड ऋग वेदा में भी जो है इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। एंड चारों दिशाओं से जो है हमें ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं कि इंडिया ने जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसे एक्सेप्ट किया है, उस फीलिंग को जो है उसने अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से हमारा इंडिया जो है यह एक रिलीजियस टॉलरेंस एंड द सेक्युलरिज्म अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ऐसी कंट्री है। स्वामी विवेकानंद सेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड religious conference which was held in the Chicago, US. I am proud to say I represent the religion that has taught the lesson of the tolerance, compassion of the universal and the fraternity to the world. India is a secular country. India is a land of the multi-religious influence of the Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity, etc. is seen in Indian culture. Therefore, the torch
bearers named our country as the Bharatvarsh by stating on its unity, which is a reflect on our broad outlook. Holy names of the seven sacred rivers of the been used in the prayers. People of including the great sages, Sufi saints, Swami Vivekananda and the Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi always stressed upon peace, coordination and the universal brotherhood. Unity in diversity is a unique feature of the Indian culture, as at the end of the day all the rivers amalgamate into the great oceans. Equivalently, our country conglomerates and the religious caste, languages and the traditions, creed and the customs and the festivals. The people of the India live their life with the feelings of coexistence. The people of the India have conserved this quality and have the wonderfully enhanced it. तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है यहाँ पे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जो है अमेरिका यहाँ पे यूएस में शिकागो में गए थे, तब उन्होंने यह कहा था कि मुझे प्राउड है कि मैं जिस धर्म का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वह जो है वह उस धर्म ने जो है यहाँ पे टॉलरेंस, कंपनसेशन एंड द यूनिवर्स फ्रेटर्निटी को जो है वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया है एंड अडॉप्ट करके बताया, यानी कि भारत में जो है सहिष्णुता का पार्ट जो है भारत ने सिखाया है। उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे जो है सभी धर्म के लोग, रीति रिवाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, सभी धर्म के लोगों का जो है कल्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि इन सभी की वजह से जो भारत में है, भारत ने भारतवर्ष यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो यहाँ पे फीलिंग्स है उसे एक्सेप्ट किया है। एंड सेवन स्केर्ड जो रिवर्स है उनके बारे में यहाँ पे जो है हमारे वेदास में वगैरह बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि सूफी संत स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे जो लोग हैं वे यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कोऑर्डिनेशन की जो यहाँ पे उनके फीलिंग्स है उसके बारे में बताया कि सभी लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ भाई बंधु की तरह मिलजुल कर रहते हैं। एंड यहाँ पे हमें लास्ट में बताया है कि हमारे इंडिया का यह कल्चर है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता, यह हमारे भारत का एक जो है लक्षण माना जाता है। जैसे कि सारी नदियाँ जो है उन सभी नदियों का पानी जो है समुद्र में मिलता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो है सभी धर्मों के लोग जो है सभी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो पीपल्स है वे सभी लोग जो है को एग्जिस्टेंस की फीलिंग के साथ रहते हैं। एंड यहाँ पे जो है हमें यह वंडरफुली क्वालिटी एंड कंजर्व्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हुआ। यह एक्सरसाइज आपको जो है नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।